So hey people, how are you people doing? I hope you all would be doing really great. So I left my last video on the note that I would be guiding the class 12 students on how to start their preparation from the beginning. Another thing, like for people who are new to my channel, for people who are watching my video for the first time, I would like to introduce myself. I am Divyangana Gupta, and yeah, I'm guiding you people because I have passed class 12th this last year with a score of 96% in the CBSE board, and I did it through the bio stream, that is physics, chemistry, bio, English, and physical education. So I would be guiding you students on regarding those subjects. And yeah, so let's begin. So when you start your class 12th, most of you would be starting it with a shock कि यार क्लास 11th अच्छी नहीं गई, क्लास 11th में कुछ नहीं किया, क्लास 11th बर्बाद है. लेकिन क्यों है बर्बाद यार? नहीं है, पास हो गए ना, पहुंच गए क्लास 12th में, तो उसे बर्बाद मत कंसिडर करो. ठीक है, तो अपने आप पे ये हैव सम फेथ ऑन योर सेल्फ कि हाँ कुछ तो हम पढ़ के गए थे तभी पास हुए हैं. तो डोंट थिंक लाइक दैट, उसकी वजह से अपनी क्लास 12th स्पॉइल मत करो. बिकॉज जैसे कि जब हम 9th से 10th में आते हैं तो वी फाइंड 10th ईजियर देन 9th. वैसे ही जब तुम लोगों ने 11th से 12th में जंप किया है, यू मस्ट बी फाइंडिंग कि हाँ 12th इज़ ईजियर. एंड सिंस यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर टू दैट ह्यूज सिलेबस, तो इट वुड बी स्लाइटली ईजियर फॉर यू. सो अब आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं एंड लेट्स बिगिन. तो सिलेबस से तो आप फेमिलराइज हो ही गए होंगे, कितना सारा सिलेबस है. तो उसके लिए आई वुड टेल कि यार अपनी समर वेकेशन, डोंट वेस्ट योर समर वेकेशन एंड ऑल दोज वेकेशंस, नॉट इवन द वीकेंड्स, बिकॉज this grade is important, and there would be a lot of new concepts which you would have to understand. There would be a lot of syllabus to cover at the end of the year, so don't try to waste your time. सबसे पहली चीज़ जो है, अगेन NCERT होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट 12th में NCERT कभी कभी थोड़े सा लगता है कि समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए देयर शुड बी सम अदर बुक्स जिनको आप रेफ़र करो, या फिर सम वेरी गुड, यू हैव टू रियली फाइंड गुड टीचर्स, क्योंकि चीज़ों को समझना 12th में आके काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड रही जो 11th के टॉपिक्स बच्चे हैं, उन टॉपिक्स की बात रही, तो उसमें से यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू 12th. तो वो वाले टॉपिक्स बस एक बार कवर करके चले जाओ, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन 12th. फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो अभी बहुत let's start subject wise. Okay, let's talk subject wise. So let's take it from bio. Okay, so when we start bio is again theory based, easy you can say, and it's thoroughly NCERT based. For bio, NCERT has to be learned, memorized completely, each and every term in NCERT. You should be knowing that, the meaning of that, what it relates to, how it could be interpreted otherwise as well. तो ये सब चीज़ें तुम्हें NCERT का आनी चाहिए. डायग्राम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो बायो में NCERT करो और उसको समझ के करो. एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, जैसे कि लाइक आई हैव माई NCERT विद मी. सो दिस इज माई क्लास 12th NCERT. वेट, so I'll show you how I try to make short notes at the end of every chapter. So I like this let's start from chapter 1. I started from chapter 1. Sorry. Yeah, so this is like the first chapter. Highlight, underline, do everything. Write all that information, extra information you find out, and at the end of the chapter try to make these kind of short notes which will summarize the chapter for you, right? Similarly, I have done it for the other chapters as well. I'll show you. This is I've done for chapter 3, which is, so I've made it like this. So like these notes give me very concise information.
So if I'm bored of reading NCERT, I would just refer to these short notes and I would be done with the subject. तो अब ये जो है चैप्टर्स करते जाओ और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ. स्टिक इट विद योर NCERT ओनली, क्योंकि NCERT तो तुम लेके जाओगे हर जगह, तो शॉर्ट नोट्स भी तुम पढ़ के जा सकते हो. और there's one more way you can be making short notes is buy that A4 size register, and that should be like plain white sheets. Okay, plain white sheets wala A4 size register खरीदो, and then you can make your short notes on that. So at the end of the year, whenever you're revising, you'll have just that one notebook to revise all the subjects. Do it like that, but don't like make it on paper. जैसे कि खाली पेपर ले लिया and you made it on that, और कभी वो गलती से पेपर खो गया तो तुम्हारी मेहनत पूरी बर्बाद है. ठीक है, तो फिर वो पेपर पे मत बनाओ. या तो यू कैन बाय अ स्मॉल नोटबुक, और स्मॉल नोटबुक नहीं मतलब दिस नोटबुक A4 साइज़ वाली. या तो फिर अगर पेपर पे बना रहे हो तो अपनी NCERT में स्टिक करते चले जाओ, ताकि तुम्हें मतलब पता हो कि हाँ लास्ट में बस NCERT करनी है. तो बायो के लिए ये है. और बायो के लिए तो बैक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. तो ये भी कर लो और बोर्ड सॉर्टेड है. फिर NCERT कर लिया अच्छे से, उसको अच्छे से समझ के पढ़ लिया, उसको अच्छे से याद कर लिया हर एक चीज़, हर एक टर्म. तो फिर तुम्हारा हो गया फिज़िक्स पे. तो फिज़िक्स अगेन बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है अमंग पीपल, एंड आई एग्री विद यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट. तो उसके लिए क्या करना है हमको कि वी हैव टू बी वेरी थरो विद बेसिक मैथमेटिक्स. तो बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके बिना फ़िज़िक्स तुम नहीं कर पाओगे. तो बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से कोई अच्छा सा लेक्चर देख लो, उससे कर लो, because basic mathematics is the soul of physics. It's like important, like really important. तो वो करनी है, बेसिक मैथ्स करनी है. तो बेसिक मैथ्स करके ही, एंड फिज़िक्स में तो यार तुम्हें बहुत अच्छी किसी टीचर की ज़रूरत है. सो गो, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे स्कूल के टीचर्स अच्छे होंगे, बट अगर गलती से तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, फिर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो गो ऑनलाइन, गो टू सम कोचिंग, फाइंड अ वेरी गुड टीचर. बिकॉज मतलब ये सब्जेक्ट फ़िज़िक्स ऐसा नहीं है कि तुम खुद से कर लोगे तो हो जाएगा. इसके लिए एक अच्छे टीचर होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो गो फाइंड वन. यू मे फिर फाइंड वेरियस ऑनलाइन, बहुत अच्छे टीचर्स हैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, तो उनके जाके वीडियो लेक्चर्स देखो. ठीक है, वहाँ से फिज़िक्स कवर करो. मैंने पर्सनली टर्म 1 से पहले वाला पार्ट जो है, टर्म 1 लाइक मैं जब पास किया था 12th, सो द syllabus was divided into 2 terms, term 1 and term 2. So for term 1 I had referred to YouTube channel of अलग पांडे सर. उनके जो पुराने वीडियोज़ हैं ना, जो ब्लैक बोर्ड पे वो पढ़ाते हैं, उससे मैंने रेफ़र किया था. तो उसके मैं नोट्स बनाए थे और उससे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था. राइट, लाइक डिटेल में नोट्स बनाए थे जो वो क्वेश्चंस करते थे. तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तुम ऑनलाइन क्वेश्चंस कर रहे हो तो क्वेश्चन भी साथ में एक बार वीडियो पॉज करके जॉट डाउन कर लो, और इसके बाद उसका सोल्यूशन ट्राई करो. क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चंस रहेंगे तो तुम जब रिवाइज कर रहे होगे उसे, यू वुड फाइंड इट ईजियर, बिकॉज क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हैं एंड तुम एक बार जब दोबारा सॉल्व करोगे तभी यू वुड हैव द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस लिख लिया करो विद द आंसर, दैट वुड हेल्प अ लॉट. अदर देन दैट आगे चलते हैं. जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड वन वेरी गुड बुक विच आई फाउंड आउट वॉज DC पांडे. ले लो यार, मैंने SL ली थी स्टार्टिंग में, बट उसमें थोड़ा मतलब डिटेल्ड का है. तो एक DC पांडे वुड गिव यू वेरी गुड बेस, मतलब उसकी जो अंदर वाली एक्सरसाइज है ना, उससे तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. फिर तुम जाके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, मतलब SL भी अच्छी है, बट उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं. तो उससे तो अच्छा तुम एक CBSE की कोई गाइड ले लो और DC पांडे ले लो. ठीक है, तो वो कर लो. उसके साथ साथ PYQs लगा लेना, तो फिज़िक्स सॉर्ट हो जाएगी. थ्योरी पार्ट के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जिसको रेफ़र करना पड़ता है, जैसे कि EM वेव्स हो गया, उसके लिए तुम्हें थ्योरी करना ही पड़ेगा. और बाकी स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, चार्ज, मैग्नेटिज्म, इन सब में कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें करा देंगे.
ठीक है, रेफर टू वन टीचर फॉर फिज़िक्स एंड अच्छा होना चाहिए, लाइक जिससे तुम्हें समझ आ रहा हो। उसके बाद टर्म 2 के लिए तो मैंने यहाँ पे ट्यूशन्स लगवा लिए थे ऑफलाइन, तो मेरे बहुत अच्छे मुझे फ़िज़िक्स के सर मिल गए थे ट्यूशन के लिए, तो मेरा फिर फ़िज़िक्स अच्छे से हो गया था। तो वो कर लो, नोट्स बनाते चलो, सारी चीज़ों के अपने सब्जेक्ट्स के नोट्स बहुत अच्छे से करके रखना मेंटेन, ताकि फिर तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज जिन बच्चों के नोट्स मेंटेन नहीं होते, फिर लास्ट में वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि मैं किस रिसोर्स को रेफ़र करूं, बिकॉज लास्ट में इतना टाइम नहीं बचता है तुम्हारे पास कि तुम किसी गाइड से उठा के पढ़ लो या कुछ और कर लो। ठीक है, तो अपने नोट्स ही लास्ट में बचते हैं जिसको तुम कर सकते हो अच्छे से। फिर केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इट्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल हैज़ टू बी कवर्ड अप लाइक फिजिक्स, तो उसके लिए यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। फिज़िक्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई फॉरगॉट कि फ़िज़िक्स में शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ अ नेसेसिटी। बायो के लिए बनाओ ना बनाओ, केमिस्ट्री के लिए बनाओ ना बनाओ, फिज़िक्स के लिए इट इज़ अ नेसेसिटी। फॉर्मूला पेज एंड दो शॉर्ट नोट्स, दैट वुड हेल्प यू ट्रिमेंडसली। इनफैक्ट जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो बस उन शॉर्ट नोट्स को लेके बैठ जाओ, तो वो फॉर्मूलाज साइड बाय साइड तुम्हारे दिमाग में एकदम दे वुड सेटल डाउन इनटू योर ब्रेन एंड यू वुड नो हाउ टू अप्लाई देम, एंड रिवीजन के टाइम में भी बहुत हेल्प करता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही है, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए तुम्हें सारे। ठीक है, कोई अच्छे टीचर को रेफ़र करो प्लीज़, एंड अपने सारे लाइक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, है ना। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ये करो, और शॉर्ट नोट्स बनाओ ऑफ कोर्स, और कुछ चैप्टर्स जो हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के उनके लिए थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इन सब चैप्टर्स के लिए तुम्हें थ्योरी भी अच्छे से करके जानी पड़ेगी, तो थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इज़ रट्टा। NCERT लो, लाइन बाय लाइन उठाओ और रट लो, दैट इज़ इट। इनऑर्गेनिक ऐसे ही होती है, उठाओ रटो, उठाओ रटो, उठाओ रटो। रटने का तरीका बताओ, निमोनिक्स बना लो, फ़नी अच्छे जो तुम्हें याद रह जाए, किसी चीज़ का ट्रेंड याद करने के लिए या किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ याद करने के लिए। तो हर एक चीज़ का अपना उठाओ और निमोनिक बना लो। हर एक चीज़ का मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, लाइक मुझे तो निमोनिक्स से याद हो जाता था, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फनी निमोनिक्स, अ लॉट ऑफ निमोनिक्स जो याद रह जाएँ। इसलिए कि बोरिंग सा बना लो, अपने तरीके से बना सकते हो, उसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। तुम कुछ फाउल वर्ड्स डाल सकते हो, तुम कुछ ऐसे वर्ड्स डाल सकते हो, कुछ फ़नी वर्ड्स, जो भी तुम्हें याद रह जाए। ठीक है, ऐसे निमोनिक्स मुझे ऐसे याद होता था। बाकी कुछ लोगों को ट्रेंड्स ईजिली याद हो जाता है, तो उन लोगों के लिए यू हैव अ गुड ब्रेन पीपल, बट मेरे को निमोनिक्स यूज़ टू वर्क फॉर मी। सो निमोनिक्स मैंने बनाए थे, एंड इनऑर्गेनिक तो रटनी पड़ती है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक बिल्कुल ऐसे नहीं होती है। इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, बट इनऑर्गेनिक मैंने उठा के रटी थी, बस बार बार उठाओ रटो, उठाओ रटो, उठाओ रटो, दैट इज़ इट। एंड केमिस्ट्री टू बी पर्सनली मेरी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब केमिस्ट्री मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने लास्ट में एक्सेल सीरीज़ की गाइड ली थी। इट इज़ वेरी गुड। तो वो एक्सेल सीरीज़ की गाइड करके यू कैन लाइक फोड़ो आराम से इन केमिस्ट्री, बिकॉज उसमें इतने सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो वो सब तुम आराम से कर सकते हो। अगर तुमने वो ही गाइड कर ली तो फिर केमिस्ट्री तुम्हारी आसानी से हो जाएगी। इवन फॉर ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, मतलब बेसिक्स तो आने ही चाहिए। तो 11th का तुम्हें GOC करना ही पड़ेगा, ठीक है। GOC और हाइड्रोकार्बन्स 11th का तुम्हें आना चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 12th। तो ऑर्गेनिक का थोड़ा है, अगर तुम्हें 11th से आती है, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह आनी चाहिए, तभी तुम्हें 12th में अच्छे से समझ आएगा। तो वो एक बार 11th का अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर आगे का अपना 12th में भी वही है, रोड लर्निंग ही है। और ऑर्गेनिक को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अपने। मैं ये नहीं कह रही NCERT की एक्सरसाइजेस सॉल्व करो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। मैंने तो नहीं की थी, कुछ बच्चे करते हैं, उनके नंबर भी आते हैं, बट मैंने नहीं किए थे सॉल्व पर्सनली एक्सरसाइजेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, तो बिकॉज़ वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है यार। और बोर्ड में इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं आता, सब बहुत सिंपल और ईजी आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बस, तो ऐसे होता है। तो ये करते चलो, और केमिस्ट्री भी तुम्हारी शॉर्ट है,
फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश के लिए तो देखो यार उठानी है और 2-3 बार वो चैप्टर पढ़ लिया एग्ज़ाम से पहले ही तो फिज़िकल एजुकेशन सॉर्ट हो जाएगा। फिज़िकल एजुकेशन में तुम इजीली एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हो, बहुत बेसिक होता है, उसमें कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है एक्सेप्ट कुछ जगह होती हैं जहाँ पे टेबल्स एंड एवरीथिंग वो सब करना होता है, तो वो कर लेना लर्न। और बाकी जगह तो जनरल पॉइंट्स हैं, तो फिर वो 2 से 3 बार बस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले और तुम्हारा फिज़िकल एजुकेशन हो जाएगा। एंड यू नो व्हेन यू राइटिंग द क्वेश्चन पेपर, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए थोड़े फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बना देना, तो फिज़िकल एजुकेशन। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश अगेन करना ही पड़ता है, बट इंग्लिश इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ना ही यू नो लर्न करने के लिए इतना डिफ़िकल्ट है। तो वही याद मतलब पोएम या फिर जो भी चैप्टर उसको पढ़ लो, उसे समझ लो एंड उसके ऑथर का नाम याद कर लो, फिर उसका ये देख लो कि उसकी थीम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ द यू नो पोएट ट्राइंग टू टेल टू यू, जस्टिफाई द टाइटल, डू दिस डू दैट, वो सब तुम्हारे आराम से हो जाएगा। स्कूल में कर लेना, इंग्लिश स्कूल में आराम से हो जाती है, ठीक है। और वह बस वो राइटिंग वाला पार्ट है, वो तुम्हें टीचर फॉर्मेट दे ही देगी, वो फॉर्मेट देख लेना और उसके 4-5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एग्ज़ाम से पहले, नॉट फ्रॉम बिफोर द बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स या फिर जो भी तुम्हारे यूनिट टेस्ट होते हैं उससे पहले। तो ये सब कर लेना, इंग्लिश भी सॉर्ट हो जाएगी। तो बस दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो आई विल मेक इट फॉर यू एंड आई वुड बी रियली प्लीज टू हेल्प। And subscribe to my channel, like and share, and I hope you are liking the videos. Bye.